Okay, so let's start chapter number six, and chapter number six is all about automated systems. Chapter number six is about robotics and artificial intelligence, machine learning, surveillance, these type of things in it. तो बस हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं what is in it. Okay, so when we talk about the automated systems, तो automated systems, you know that हमने जो ह्यूमन इंटरवेंशन है हमने उसको रिड्यूस करना होता है कि आप कम इंटरवीन करें और सिस्टम्स जो हैं वो बाय इटसेल्फ डिसीजन लें एंड आफ्टर टेकिंग द डिसीजन दे जस्ट परफॉर्म द टास्क सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स और फिर हम उन्हें मल्टीपल फील्ड्स के अंदर भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं. Okay, so let's start with the automated systems. The very first point is the definition of it. Okay, so an automated system is a combination of software, hardware. अब हार्डवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं like there are sensors, there are microprocessors, there are actuators that are designed and programmed to work automatically without any human intervention. अब हमारे माइंड में जाता है कि ओके फिर ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे. हम इनको लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे. like automated trains are there, like for example in the cars there are many automated options like adaptive cruise control, like auto car park. So all these things are similarly drones, and these are in the form of the automated system, so it means that they are performing the task by itself, and human intervention कम से कम है. We say it gets a zero है, but to some extent है वहाँ पे. So first of all इसकी definition as it is prepare करनी है पेपर में as it is आती है. Okay, आगे चलते हैं. then advantages and disadvantages of an automated system. तो पहले हम एडवांटेजेस की तरफ आएंगे. तो डेफिनेटली जब की कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है तो पहले एडवांटेजेस ही कंसिडर किए जाते हैं. much faster than a human operator to take any necessary action. इट मीन्स एक एंड पे आप ऑपरेट करें एक सिस्टम को, एक एंड पे ऑटोमेटेड सिस्टम है. ऑटोमेटेड सिस्टम ज्यादा क्विकली जो है वो डिसाइड करेगा. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार एंड ऑन द अदर एंड देयर इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ड्राइवर है वो लेट ब्रेक लगाए according to a certain situation, but adaptive cruise control exactly according to the measurement brakes apply करेगा. So we can say that much faster, much safer to an extent, because ये यहाँ सारे मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो कर रहा है. प्रोग्राम्स के अंदर जो आप रूल्स अप्लाई किए हैं इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट. हम जो होते हैं वो लाइक समटाइम्स क्विकली डिसीजन ले रहे हैं, समटाइम्स लेट डिसीजंस ले रहे हैं. A human also keeps human away from dangerous environment. Acha, it also keeps humans away from a dangerous environment. Like, for example, there is a nuclear activity going on, like in a factory or manufacturing something. So, in those sort of systems, automated systems are safe. The process is more likely to run under optimum conditions, and any small changes. अब ये एक ही point है. Changes needed can be identified very quickly and action taken in the long run. सो द पॉइंट इज कि आपने एक सिस्टम डिजाइन किया, दैट सिस्टम शुड वर्क इन एन ऑप्टिमम कंडीशन. ऑप्टिमम कंडीशन इज द कंडीशन व्हिच इज बेस्ट सूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू परफॉर्म. So you'll say that कि अच्छा in that scenario it will work fine. So these are some advantages and disadvantages. हाँ सॉरी, अब disadvantages के अंदर आते हैं. For example, you are going to buy a car in automated, sorry, adaptive cruise control in it. You are, for example, applying automated system in agriculture or somewhere. So the first thing is that it will take a lot of money. So the तो पहले तो आपको बहुत अच्छी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए to buy that thing, buy that, ये in that sense वो expensive है. Always possible for a set of conditions to occur that were never considered during testing, which could have safety implications. ठीक है, तो this is the second thing. Okay, any computerized system is subject to cyber attacks. यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम आती है कि what if कोई सिस्टम हमारा हैक कर ले. what if आपने कैमरास लगाए में सर्विलेंस के लिए, and if a person like hack
हैक्स इट, तो वो तो उसको नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. देयर इज आल्सो यू नो देयर इज आल्सो अ लीक ऑन इट, जिसमें there are multiple evidences on the basis of like hacking cameras and these sort of automated system always need enhanced maintenance क्योंकि there are multiple sensors in microprocessor. उस सिनेरियो में फिर तो आपको maintenance, like if you have a car that is totally manual and on the other end you have an automated car, तो automated car की maintenance cost ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? Because there are so many sensors which should be checked. ठीक है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड सिस्टम. तो आपने ना इसी तरह से इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज प्रिपेयर करने हैं, ये एग्जाम में इसी तरह से आएंगे. ठीक है. और वो अब देखो, हम ओवरऑल जनरली ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और फिर हम स्पेसिफिकली फील्ड के अंदर आके उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. तो काफ़ी सारे तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं. कुछ हमें उसका सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं. So automated systems are still used in manually controlled transport, which includes cars, buses, lorries, trains, aircrafts. For example, modern trains will use automated signal control system. अब हम देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं. हमें देखें यहाँ पर एक कार पार्किंग सिस्टम नज़र आ रहा है, और आपको देख के आइडिया हुआ होगा कि ये हम लोगों ने तो नहीं पार्किंग की हुई इतने एफिशिएंट वे में, क्योंकि हम जब पार्क करते हैं ना तो हम कहते हैं कि अच्छा ये पार्किंग सिस्टम है, ठीक है, आधी गाड़ी हमारी यहाँ पे होगी और आधी यहाँ पे होगी. ठीक है, मेरी पूरी पार्किंग स्पेस जो है ना, इसमें सिर्फ एक कार पार्क करेंगे, बाकी चार जाएं जहां उन्होंने जाना है, तीनों जाएं जहां जाना है. कि हम तो बस आराम से ना जो है वो दरमियान में चॉइस आप बन के कार पार्क करेंगे. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो इट मीन्स कि we need an efficient system in the car parking system to park the car. Acha. So the main advantages of this automated systems are allows the same number of cars to use fewer parking spaces, avoids traffic disruption in cities definitely, because if you're using adaptive cruise control and the multiple sensors, so braking जो apply होगी, acceleration जो apply होगी, वो exactly according to the calculations होगी. Cars can are considering the lines, fewer dents and scratches to cars. But if you, for example, I guess you'll use these type of automated cars here in some smaller cities of Pakistan, तो I guess ज़्यादा ही dense होंगे. But चले. Safer system, since sensors monitor all objects, including young children, maneuver will be stopped if any new object is encountered. Very consistent results. So these are many of the advantages of automated systems when we apply these in the transport. लेकिन there are some disadvantages. हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड सिस्टम बाय द ड्राइवर्स, लॉस ऑफ स्किल्स. ओके, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फर्स्ट कार बाय की एंड आपको इससे पहले कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ड्राइविंग का, एंड योर फर्स्ट कार इज ऑटोमेटेड कार in which there are a lot of functions. There is like auto car park, there is adaptive cruise control, there are so many options in it. So the point is, now you're over relying on those options. So means with time, आपकी skills, driving skills नहीं improve हो रही, because you are highly relying on those options. Faulty or dirty sensors or cameras can send false data images. तो ये हो सकता है कि if there are sensors like they're not working properly, so there is a risk कि वो accidents का risk है. Curbing of wheels is common problem since the sensors may not pick up low curbs. तो वो जो हमारे wheels के अंदर problem है, जो like there are for example a lot of curbs at the road, वो properly नहीं pick कर रहा, suspension के issues create होंगे. Expensive option that does not really save the driver any money. ओके, एक एंड पे ये है कि अच्छा आप ड्राइविंग स्किल जो है वो लर्न कर लेते, बट आप दूसरे एंड पे कहते हैं कि नहीं, आई जस्ट वांट डोंट वांट टू बिकम अ गुड ड्राइवर, आई विल बाय एन ऑटोमेटेड कार. तो नॉन ऑटोमेटेड कार आपको मिल रही है लेट्स से 50 लाख की, और ऑन द अदर एंड जो ऑटोमेटेड कार आप मिल रही है वो मिल रही है 250 लाख की. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है फिर उस सेंस के अंदर
कि इफ यू वांट टू बाय अ बजट फ्रेंडली कार, आपको 250 लाख की फिर भी एक नॉर्मल ऑटोमेटेड कार मिल रही है, so it means कि you'll definitely consider to like learn skill of driving and then you'll buy 50 lakh car instead of कि आप कहें नहीं मैं तो बहुत lazy हूँ, I don't want to learn skill, I'll buy a 250 lakh car. So it is not that worth it अभी, क्योंकि you know automated cars तो अभी आए हुए like मैक्सिमम 10 years कर ले हुए हैं, तो with time might be they'll just like that will not that much costly, requires additional maintenance to ensure it functions correctly all the time because there are a lot of sensors in it and all that. अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई हैं, आगे चलें, आपने इसको याद करना है, रट्टा लगाना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन. ओके दैट्स गुड. अच्छा जी, आगे चलते हैं. सो नाउ दिस इज एग्रीकल्चर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके जो है ना एल्डर्स, वो एग्रीकल्चर की फील्ड में थे. ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा, आईटी की फील्ड में गए, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में गए, इंजीनियर बने, लाइक फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर बने, and now you know a lot of machines which are good at agriculture, and now you are giving them a proposal that okay, in the field of agriculture I just want to propose some ideas, I want to like introduce few of the machines which will be good in your system, and आप उनको एक proposal दे रहे हैं. Now we have to see that either the automated things or automated systems which you are just introducing in the agriculture, in the field of agriculture, it worth it or not. तो डेफिनेटली हम उसके एडवांटेजेस को भी सामने रखेंगे, हम उसके डिसएडवांटेजेस को भी सामने रखेंगे. ठीक है, पर आपने समहाउ वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. आई नो कि बैकलैश आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बड़े इतनी जल्दी बात नहीं मानते. when it comes to innovation, so they takes time. चलें, the main advantages of this automated system, let's start. The very first one is reduced labor cost since the system only needs a supervisor to monitor vast area. अच्छा, पहले तो हमने ये माइंड में रखना है कि अच्छा हम ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे. अच्छा, हम ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट. और वो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम क्या करेगा, यू फर्स्ट हैव टू प्रोग्राम दैट इरिगेशन सिस्टम, यू हैव टू लेट देम नो कि अच्छा विच टाइप ऑफ क्रॉप इज देयर, कितना उसे वाटर चाहिए, कितने टाइम फ्रेम के बाद चाहिए. यू are completely programming that, and you also have to give them the weather forecast of the like next 10 days or 20 days, so that according to it will adjust. अच्छा, फिर आपने उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है in which there will be multiple drones. It will see कि अच्छा कहाँ कहाँ पर प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हुई हुई क्रॉप्स की, कहाँ हुई हुई है. It will overall monitor things and will give you the data. Okay, now you are introducing the drones which are good for spraying pesticides. You have to introduce that. So it means the multiple type of automated systems you have to introduce. You have to introduce it. Okay, अब हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हमें मिलेंगे. रिड्यूस लेबर कॉस्ट. हाँ, फिर आपने ऑटोमेटेड सिस्टम उसके लिए भी यूज कर रहे हैं, कटिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए भी यूज करें, तो अब रिड्यूस लेबर कॉस्ट तो है इन अ सेंस ऐसे कि पहले आपने एक पूरी टीम रखी हुई थी, वो कटिंग के लिए भी यूज होती थी, उन्होंने जब भी लाइक मल्टीपल फेजेस के अंदर आप लेबर को यूज कर रहे थे. अब एक पर्सन चाहिए, वो मॉनिटर कर रहा है सिस्टम के थ्रू और giving options. If any maintenance is needed, then a dedicated team can cover all of the irrigation system. हाँ, लेकिन ये है कि you just have to hire a mechanical engineer or a technician who should be good at all the stuff कि अगर कोई मशीन प्रॉब्लम करती है तो उसको फिक्स करे. बेटर एंड मोर एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ द इरिगेशन प्रोसेस, अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि इरिगेशन में आपने जस्ट उसको बताना है, वेदर फोरकास्ट देनी है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना है, सो इट विल गिव यू द बेस्ट आइडिया, बेस्ट आउटकम. बेटर कंट्रोल ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेज सच एज वाटर. डेफिनेटली कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम के थ्रू वाटर नहीं देना, कम भी नहीं देना, एक प्रॉपर वे में जा रहा है. फास्टर रिस्पॉन्स देना, ह्यूमन हैविंग टू मैन्युअली चेक many kilometers of irrigation channel. हाँ, ये बात भी माइंड में रखनी है कि ओके, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दीज ऑटोमेटेड सिस्टम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसा ना हो आप कहें कि हमारे पास तो बस एक छोटा सा प्लॉट है और उसके अंदर हम जो है
उधर हम ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम भी ला रहे हैं, और अब उधर हम ड्रोन्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर डेफिनेटली इट विल नॉट बी वर्थ वाइल। तो हमें ये देखना है कि ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, ह्यूज लैंड, एंड इन दैट लैंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दी स्टफ। अच्छा, खैर, safer temperature in the field could be 40 degree and other risk could exist. Different crops may require different irrigation requirements, इसकी अभी हम बात कर रहे थे। Flooding condition, whereas orange trees like dry condition, it is possible to program the controller so that different growing conditions can be maintained simultaneously. और इधर भी हम इसी चीज को consider कर रहे थे, that how we have to consider this thing। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो आई गेस इसके अंदर तो जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? आगे चलें। ओके गाइस, देन कम सम डिसएडवांटेजेस। अच्छा, आपने तो उनको एडवांटेजेस बताई ना अपने एल्डर्स को कि दैट इज द रीजन आई वांट टू इंट्रोड्यूस इट। अब वो बहुत सारी डिसएडवांटेजेस के साथ आएंगे। देखते हैं वो क्या कहेंगे। वो कहेंगे इट इज एक्सपेंसिव टू सेट अप, वी कांट लाइक गिव यू सो मच मनी टू यू कि आप ये सारी मशीन्स लगाएं। और उनकी बात ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है। हाँ, क्योंकि मशीनरी इज एक्सपेंसिव, एंड हियर इन पाकिस्तान यू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, कितनी ज्यादा ड्यूटी है, कितनी ज्यादा लाइक अदर टैक्सेस हैं। एक मशीन 100K की है तो हमें यहाँ पे 500K की पड़ती है, एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है इनकी मशीन्स की, सो डेफिनेटली यू विल import it from ऑस्ट्रेलिया और फ्रॉम दीज कंट्रीज। अच्छा, चलें। वेरी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द ऑटोमेटेड सिस्टम। आपने जो टेक्निकल पर्सन हायर करना है ना, उसकी सैलरी भी ठीक ठाक देनी पड़ेगी। इंक्रीज नीड टू मेंटेन द वाटर चैनल्स। अब आपने वो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है ना, तो आपको वो सारे पाइप्स भी देखने हैं, वाटर फ्लो भी चेक करना है कि प्रॉपर जा रहा है, नहीं कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा, वो टेक्निकल पर्सन का काम है। But still, a blocked or collapsed channel would not be picked up by the automated system, which could result in some area being overwatered and some areas being starved of water due to the problem in that system। Otherwise ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सो इट मींस दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। और अगर आपके माइंड में कोई डिसएडवांटेजेस हैं, यू कैन राइट इट इन द पेपर। ऐसा नहीं होता इस वाले चैप्टर के अंदर कि देयर इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि अच्छा यही एडवांटेजेस और यही डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आउट ऑफ द वे जाके आपके माइंड में कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, यू कैन राइट इट। ठीक है। इवन आप इन क्वेश्चंस की जब मार्क स्कीम चेक करेंगे, तो लेट से 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो उन्होंने 8 to 10 लिखी हुई है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, वट एवर दे आस्किंग, कि इन 8 to 10 में से कोई भी 3 लिख दिए, सो इट इज फाइन। ठीक है, तो वो हो सकता है ऐसा। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। सो आई गेस ये बात तो क्लियर होगी होगी कि अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर अब भी आपकी जो है वो कन्विंसिंग पावर है कि आप किस तरह से कन्विंस करते हैं टू इंट्रोड्यूस दैट सिस्टम। अच्छा, खैर, द पॉइंट इज, वैसे अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, इन एग्रीकल्चर वी शुड इंट्रोड्यूस दी सॉर्ट ऑफ सिस्टम। इसमें ना हमें ये एक चीज मिलती है, लेबर कॉस्ट। जो हमारी एशियन कंट्रीज है ना, यहाँ पर लेबर कॉस्ट वैसे ही खैर बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। इफ आई टॉक अबाउट लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन यूरोपियन कंट्रीज, तो उधर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो दैट्स वाई अभी भी ना आप एग्रीकल्चर के अंदर देखो तो इन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर विद दैट कन्वेंशनल सिस्टम्स। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, हम तो कंप्यूटर साइंस के अंदर रह के बात करेंगे। चलें, देन कम्स वेदर स्टेशंस। अच्छा, अब वेदर स्टेशंस हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं रेलिवेंट टू वेदर। और जब हम वेदर के ऊपर आते हैं तो हमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो है कि अच्छा चलें ठीक है, हमें जस्ट पता चल रहा है कि अभी क्या वेदर चल रहा है। और सेकेंडली हमें साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है और भी मिलती है। और वो क्या मिलती है उसको देखते हैं, अगर ये अपडेट होता है तो। आई डोंट नो ये क्यों नहीं अपडेट हुआ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर, अगर हम अपने वेदर सिस्टम को ओपन करते हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें ऑलरेडी एक उसके साथ टेम्परेचर के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या है।
अच्छा, मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर हमें देखें सबसे लेफ्ट पे वो विंड प्रेशर बता रहा है, लाइक इट इज 5 किलोमीटर पर आवर करंटली, अबाउट 5 किलोमीटर पर आवर। सो इट मीन्स यहाँ कौन सा सेंसर यूज होगा? प्रेशर सेंसर यूज होगा। ठीक है, सो वी हैव टू सी विच टाइप ऑफ सेंसर्स आर देयर। आ गया प्रेसिपिटेशन, देयर इज 0 mm, वाई? बिकॉज अभी कोई रेन का कोई सीन ही नहीं है। सो इट मीन्स लेवल सेंसर इज यूज फॉर दैट। feels like 17 डिग्री, तो feels like means के टेम्परेचर सेंसर यूज हो रहा है। नेक्स्ट, मून राइज नो सेंसर। विजिबिलिटी इज 23 किलोमीटर, तो खैर सेंसर यहाँ भी कोई नहीं यूज हुआ। आगे देखें, ह्यूमिडिटी इज एट द मोमेंट 51%, सो इट मींस ह्यूमिडिटी सेंसर यूज हो रहा है। देन अगेन प्रेशर सेंसर यूज हो रहा है, सो इट मींस द मल्टीपल सेंसर्स यूज्ड ओवर देयर। तो यही सिस्टम इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि हमने वेदर स्टेशंस के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सो वी हैव टू सी दैट हाउ दीज ऑटोमेटेड सिस्टम्स वर्क। अच्छा, so automated weather stations are designed to save labor and to gather information from remote regions or where constant weather data is requirement. ठीक है। ओके, तो पहली जो चीज आपके पास आ रही है वो थर्मोमीटर है। वो आपका टेम्परेचर मेजर करेगा, आपका तो नहीं, एनवायरनमेंट का। एनेमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करेगा। ठीक है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। बैरोमीटर एयर प्रेशर को करेगा। लेवल सेंसर वही प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। लाइट सेंसर टू मेजर द आवर्स ऑफ द डे लाइट। तो आपने ना इसमें सेंसर्स के नाम याद करने हैं, किस पर्पस के लिए यूज होंगे। ठीक है, इन्होंने ना एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, सिंपल नहीं बताया कि अच्छा लाइट सेंसर यूज हो रहा है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। फिर आ जाती है गेमिंग। अब गेमिंग के लिए हम कौन से सेंसर यूज करेंगे? एक्सेलेरोमीटर्स यूज करेंगे, वही एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन के लिए जो यूज होते हैं। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइक यू आर मूविंग पोर्ट्रेट वे और लैंडस्केप वे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज थिंग्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोमेटेड सिस्टम, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट 6.1। तो 6.1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम अभी 6.2 पे स्विच करते हैं और फिर हम 6.3 पे जाएंगे। 6.3 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, नॉट दैट बोरिंग। हाँ, ये है कि द गाइज वर नॉट गुड एट रट्टा, उनके लिए एक चैलेंजिंग चैप्टर है। बिकॉज आई हैव सीन के कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर पेपर टू इज वेरी इजी, कुछ कहते हैं नहीं सर पेपर वन इज वेरी इजी। ये जो पेपर वन इज वेरी इजी वाले हैं ना, इनका रट्टा बहुत अच्छा होता है। और जो पेपर टू वाले हैं ना, वो उनका उनकी लॉजिक्स अच्छी होती है। खैर कुछ लोग दोनों में अच्छे होते हैं। सो मुझे ये बताएं कि 6.1 इज क्लियर? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। फिर हम नहीं तो 6.2 में जाते हैं, जस्ट नीड योर फीडबैक। ओके, ये जो आपसे फीडबैक ले रहा होता हूँ ना, इसकी रीजन एक ये भी होती है कि अच्छा आप सारे क्लास में ही हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स, स्मार्ट तो नहीं कहूंगा, ओवर स्मार्ट कहूंगा, देयर आर सम ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स, वो ज्वाइन करते हैं चले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते, फिर एंड पे आते हैं क्लास को एंड करने। तो आई जस्ट वांट टू सी कि अच्छा आप लोग सारे साथ ही हैं। अच्छा, देन गेमिंग में आते हैं, क्योंकि आप लोग तो वो प्रो है ना इस ऑनलाइन क्लासेस के। आप तो लाइक ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले से फर्स्ट ऑनलाइन, नहीं नहीं 7 इयर्स पहले फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी, आपको सारे ट्रिक्स आते हैं। अच्छा, गेमिंग में आते हैं हम। गेमिंग डिवाइसेस, अच्छा गेमिंग तो हमने कर लिया ना, हम रोबोटिक्स के ऊपर आते हैं। सो अच्छा, अब व्हाट इज द सिस्टम बिटवीन ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स? अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ना हमने सॉफ्टवेयर की भी बात की थी। ठीक है, लाइक अभी हमने वो वेदर कंट्रोल सिस्टम की बात की, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आ रही है एंड ऑल दैट। फिर हमने उसमें बात की थी इरिगेशन सिस्टम की भी, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी बात की थी। अब रोबोटिक्स ना ये बड़ा स्पेसिफिक है। इट इज स्पेसिफिक टू मशीन्स, इट इज स्पेसिफिक टू रोबोट्स, इट इज स्पेसिफिक टू ह्यूमनॉइड्स। ठीक है, मतलब अ रोबोट विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन। तो हम यहाँ पर जस्ट बात कर रहे होते हैं जो वो चीज जो एक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सो robotics is a branch of computer science that brings together the design, construction, and operation of robots.
ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रोबोट को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑटोमेटेड सिस्टम एक 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 बिग टर्म है, जिसके अंदर रोबोट्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, विच आर लाइक गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, लाइक मैनेजिंग द सिस्टम। तो अब जैसे अब हम रोबोटिक्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा सर फिर इसमें क्या सिस्टम्स आते हैं। अब जैसे कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल है, या ऑटोमेटेड डोर कंट्रोल है, लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ इट, वो गेट ओपन हो जाता है, यू नॉट इन फ्रंट ऑफ इट, गेट क्लोज हो जाता है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ रोबोट बिकॉज द मूवमेंट इज देयर। ओके, देन रोबोटिक्स में और ह्यूमनॉइड्स की बात करते हैं, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, हम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की बात करते हैं, सो इट इज टेकिंग एन एक्शन। ठीक है, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब जब हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जाएंगे ना, तो हमें लाइक सेम ही मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट ब्रिंग्स टुगेदर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन अच्छी सी याद करनी है। वो उधर ऊपर हमने ऑटोमेटेड सिस्टम की डेफिनेशन की थी, और यहाँ हमने रोबोटिक्स की है। तो दोनों इज सेम। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। अच्छा जी, इसमें आते हैं। कहाँ रोबोटिक्स को यूज करें? फैक्ट्रीज में कर रहे हैं। अगर हम फैक्ट्रीज में बात करते हैं, सो वी आर वेल्डिंग द पार्ट्स टुगेदर, वी आर painting the cars, we are fixing the windscreens, we are cutting out the metal parts, bottling and labeling plants, warehouses. So we are using robotics in factories. ठीक है, सो ये आपकी रोबोटिक्स की एप्लीकेशन में आ गई। कहाँ यूज करेंगे? होम्स में, ऑटोनोमस फ्लोर स्वीपर्स में, ऑटोनोमस लॉन मोवर, आयनिंग रोबोट्स, पूल क्लीनिंग, ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर्स, एंटरटेनमेंट। तो वी आर यूजिंग द रोबोट्स here. ओके, देन तो ये कुछ सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस हैं। ओके, अब हम रोबोटिक्स की फर्दर एप्लीकेशंस को देखें तो ड्रोन्स इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब अनमैन्ड, अब टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। दीज आर द ड्रोन्स जिसको आप ना एक अपना टारगेट बता देते हो, ये टारगेट को हिट करती है, और फिर सम टाइम्स ये वापस आते हैं, सम टाइम्स ये अपने आप को क्रैश कर लेते हैं। ठीक है, एंड यू नो अबाउट दीज टाइप ऑफ like some countries used during the war, either remotely controlled or totally autonomous, वही हम बात कर रहे थे। Reconnaissance, for example, taking aerial photograph can be used to make parcel deliveries. ये parcel deliveries में European countries इसको use कर रही हैं, like Amazon is using this system, which is like picking up the parcel and dropping it at the doorstep of that person who just have ordered the product. यहाँ आपको पता है सक्सेसफुल नहीं होगा, एंड यू नो द रीजन क्यों नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है पेपर में, आई गेस एक पेपर में मैंने देखा था, ये आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, अब हमने ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोबोट देखनी है कि क्या है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, 6 मार्क का भी आ सकता है। इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो यू जस्ट हैव टू राइट दीज 3 हेडिंग्स। ठीक है, एबिलिटी टू sense the surroundings, have a degree of movement and programmable. So these are the 3 things जो कि हाँ यूज होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास फर्स्ट है, दिस इज डन वाया सेंसेस, हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट, दे कैन यूज ऑफ। अच्छा, पहले हम एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स की बात करते हैं कि इसमें क्या है। आपने डिजाइन किया, लाइक फॉर एग्जांपल एक कार डिजाइन की, एक रिमोट कंट्रोल कार डिजाइन की। द पॉइंट इज कि आपकी वो जो कार है, वो उसमें अगर आपने सेंसर्स नहीं लगाए हैं, सो वो क्रैश करेगी, कभी एक दीवार में जाके लगेगी, कभी दूसरे में लगेगी। सो इट मींस वो फिर रोबोट के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं कर रही। So this is done via sensors. You should have used these sensors given there is a wall in front of it or any obstacle, like you are, for example, designing a floor sweeper or a lawn mower. तो अगर उसके सामने कोई obstacle आता है, तो उसने अपने आप को सेव करना है। Have a degree of movement. Definitely they'll move left, right. ठीक है, and programmable means like you can program it, like for example you are saying that okay you just have to complete the task in the next 50 minutes, या आपने उसकी स्पीड सेट की है, so it means this is like programmable। अच्छा, अब जब आपके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, so this is done via sensors, या आपने डिस्क्रिप्शन फिर लिखनी है अगर there is a 6 मार्क क्वेश्चन।
हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट में आपने बताना है कि ओके वी आर यूजिंग व्हील्स, कॉग्स, पिस्टन्स, gears etc so that it can function or move from one place to another. And programmable is like they have a microprocessor in it, जिसके थ्रू वो कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, राइट? सो इन दिस वे यू जस्ट हैव टू राइट थिंग्स। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोबोट में कंसिडर होंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देन देयर आर टाइप्स ऑफ रोबोट्स। कौन कौन से रोबोट्स हैं इनको देखते हैं। फिजिकल रोबोट्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रोबोट्स। सो टू टाइप्स ऑफ रोबोट्स आ जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट रोबोट्स। इंडिपेंडेंट रोबोट्स आर द वंस जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग देम इंस्ट्रक्शन, दे आर टोटली ऑटोनोमस। लाइक हम बात कर रहे थे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स की, कि उनको एक बार प्रोग्राम किया हुआ है दैट ओके यू जस्ट हैव टू हिट दिस टारगेट, और वो उसी टारगेट पे जाएंगे और वो उस एरिया को हिट करेंगे। समटाइम्स वो अपने आप को भी क्रैश कर लेंगे, डिपेंड्स को वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर, या जब उसको लॉन्च करने से पहले क्या प्लान किया था। देन यू नो दे आर लाइक रॉकेट्स, दे जस्ट हैव लाइक प्रोग्राम इट अकॉर्डिंगली और वो उस एरिया में जाते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट रोबोट्स में आते हैं। Have no direct human control. They are said to be autonomous. For example, autonomous vehicle can replace the human activity totally, no human interaction. Then comes dependent robot. Let's say आपने एक robot buy किया है, sorry, drone buy किया है just for the like videography, and you have a remote in your hand and you are handling it. So it means that is dependent robot. It is totally up to you कि आप उसको किस way में लेके जाते हैं। So I have a human who is interfacing directly with the robot. अच्छा, rather than totally replace the human activities there, वही बात है ना कि आपके पास वो है उसका रिमोट। अच्छा, देन देयर आर द रोल ऑफ रोबोट्स एंड देयर एडवांटेजेस। वही हमने बात करनी है, जैसे हम ऊपर ऑटोमेटेड सिस्टम में बात कर रहे थे ना, यहाँ भी करनी है। नाउ कंसीडर द यूज ऑफ रोबोट्स इन अ नंबर ऑफ एरियाज टुगेदर विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कहाँ कहाँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? तो इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हैं, मेडिसिन है, डोमेस्टिक यूज है और एंटरटेनमेंट है। सो दीज आर the areas where we are using the robots, and we have to consider the advantages and disadvantages. तो मुझे बताएं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आगे चलें। there is any question let me know. I guess ये बहुत ज्यादा सिंपल है, दैट्स आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये याद नहीं किया हुआ तो याद जरूर करना है आप लोगों ने, बिकॉज एग्जाम बहुत ही कम टाइम रह गया। कितना टाइम रह गया? इट्स फेब नाउ, और मार्च अप्रैल। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये ओवरऑल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं रोबोट्स के, नहीं नहीं बल्कि सॉरी इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने पहले ये देखना, आपने इंडस्ट्रीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया रोबोट्स को तो हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। अच्छा, द वेरी फर्स्ट वन इज, यस इट इज वेरी इजी। अच्छा, रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ वर्किंग इन कंडीशंस दैट मे बी hazardous टू ह्यूमन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं न्यूक्लियर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और एक आपके पास ऑप्शन है कि वो, कि आप किसी पर्सन को भेजें कि वो जाके मॉनिटर करें, एंड ऑन द सेकंड आप रोबोट को भेज रहे हैं, तो रोबोट इज ज्यादा सेफ ना, आपकी जान तो बच गई ना। रोबोट्स वर्क 24/7। ऐसे ही हमारी तरह नहीं नखरे करते रोबोट्स के। अच्छा, हम 10 मिनट काम करते हैं, कहते हैं अच्छा अब हम थक गए हैं, चाय चाय पीते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो ये वर्क करते रहते हैं 24/7, इनको कुछ नहीं होता। रोबोट्स आर लेस एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। हाँ, इन द लॉन्ग रन, लाइक यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ रोबोट, yes you have to invest a lot, but you know it will work for years. So when you compare the labor cost with the robot, तो at that particular time you know कि फिर रोबोट्स हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इन द लॉन्ग रन की बात हो रही। रोबोट्स आर मोर प्रोडक्टिव देन ह्यूमंस। वही हमारी वाली बात, अभी मेरे वाली बात है कि वही मैं आपको कह रहा था कि अच्छा, आप जैसे आपको कहते हैं ना कि अच्छा कुछ पढ़ो, आप घर वाले कहते हैं तो आप बस 10 मिनट्स पढ़ते हैं तो 20 मिनट्स रेस्ट करते हैं, लेकिन ऑन द अदर एंड हम